Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So let's get started with today's lecture, which is one additional lecture for analysis of financial statements. Now ये एक चैप्टर है जो 12th स्टैंडर्ड लेवल पे महाराष्ट्र बोर्ड में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ओके, बट स्टिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है बाय एक्सप्लेनिंग एंड बाय सॉल्विंग everything that had to be explained and solved. Today I am devoting this particular lecture is to explain to you the objectives which definitely are a possibility for 1 or 2 marks. Before I get into the objectives, आपको क्या समझना है कि ये जो है क्या वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, उसका इंफॉर्मेशन और उसका अंडरस्टैंडिंग, एज वेल एज द बैलेंस शीट, वो काफ़ी लंबा होता है, उसका इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, एज वेल एज रेशियोज, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट. दैट मीन्स द एंटायर चैप्टर का इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू आर समहाउ, जो आई एम नॉट श्योर कैसे, बट ये लेक्चर पे आप टपक गए एंड यू आर एक्सपेक्टिंग चलो अभी सर पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ समझ में आएगा, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव अबाउट इट, बट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द लास्ट 30 lectures or not seen them, 30 is a big count, then this is going to be difficult, definitely so. Okay, now याद क्या रखना है? well, काफ़ी चीज़ें that vertical income statement में from the beginning you start with sales, you minus sales return, you get net sales. फिर cost of goods sold में trading account आता है, opening stock, closing stock, purchase return, and you get gross profit. उसके बाद P&L account, that is what I've done, 2 parts. P&L account में operating expense, उसमें ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, फाइनेंस एक्सपेंस, and then at the end you get operating profit. Next non operating items, कभी है कभी नहीं है, and the last thing you get is NPBT, net profit before tax, tax minus किया NPAT. That is just a run through. This is what makes this particular statement. The next is the entire balance sheet, vertical form में. It starts with sources and from that it goes to application. Sources के अंदर owner का पैसा and later on borrowed funds. In application fixed पे खर्चा किया, because application means खर्चा किया, applied. Then investment पे खर्चा किया,
वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एसेट क्विक, करंट liability quick, and non-quick also. It's not me teaching you this because the teaching is already done. It is me reminding you this, okay? Because if I'm explaining objectives, for me it is click mark, but then for you, as far as understanding is concerned, थोड़ा मुश्किल हो सकता है. Okay, ratios में 3 टाइप के रेशियोज आपको मैंने समझाए. रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 numbers expressed in percentage, expressed in times, expressed as a pure ratio. The first thing you learnt was balance sheet ratio. उसके अंदर current ratio का formula and quick ratio का formula itself is what can be a part of a objective. The next is income statement. उसमें again whatever are the formulas, gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, again it's all nothing but a part of the objectives. And the last is combined ratio, mixed ratio. There were 2 of them. Actually एक ही पढ़ाया गया क्योंकि एक पे ही ध्यान था. Return on capital employed and return on investment. Fine. ये जानना, समझना और आखिरकार the cash flow statement. कि cash flow statement meant पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ पे गया, उसके 3 बहाने: operating activity, investing activity and financing activity. What does operating activity mean? Examples. Investing activity means examples, and financing activity means and examples. अगर ये सारा पिछला आपको याद है तो अभी जो अगला आगे आने वाला होने वाला है ना, वो भी आपको याद होगा. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली है, select the most appropriate alternative from those given below. तो select it's like an KBC style. Gross profit ratio indicates the relationship of gross profit to the what? Net sales, क्योंकि that is what you have to remember कि that is the formula of gross profit ratio. So वो marking accordingly हो गया. Next, current ratio, the formula current asset upon current liability. So part C, option C is correct. Liquid ratio means those assets जिसमें स्टॉक नहीं है, प्रीपेड नहीं है. ओके, स्टॉक नॉन क्विक है, प्रीपेड नॉन क्विक है. तो अगर आप थोड़ा ऊपर देखो आपको नजर आएगा करंट एसेट प्लस स्टॉक, वो गलत है, तुमको माइनस करना है स्टॉक. बी इज करंट एसेट माइनस स्टॉक, एक हद तक सही है. करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड नहीं, प्रीपेड होगा तो वो भी माइनस होगा बिकॉज इट इज अ नॉन क्विक आइटम. none of these obviously is not. It's a very convenient answer. सर नहीं पता तो none of these कर दो. No, but point B, because stock is non quick, तो non quick निकाल दो तो quick asset बच जाएगा. Quick asset is liquid asset. Next, cost of goods sold. What is that? Well, सेल्स में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो तो ऑटोमेटिकली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है. ओके, इन द प्रायर लेक्चर, द प्रीवियस लेक्चर. नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो. आई थॉट, मेरे सोच के हिसाब से, दैट देयर वाज समथिंग अनफॉर्चुनेटली प्रिंटेड रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, तो आई मेड अ लिटिल बिट चेंज विच मेक्स मोर सेंस, जिसके लिए जो आंसर था, इवन दो टेक्स्ट बुक में वो आंसर था, वो मुझे हजम नहीं हुआ. नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू डैश इन एब्सेंस ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नाउ ऑलरेडी पॉइंट बी इज मार्क्ड, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट डू आई मीन बाय दिस. ये ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट क्यों है? ओके, सो इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट, आपको ये दिखेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिस वन, ओके, एंड उसके नीचे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिंपल नेट प्रॉफिट, के बीच में देयर इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. अगर वो नहीं है नॉन ऑपरेटिंग, मैंने क्वेश्चन में लिखा, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैंने वो चेंज किया है.
then automatically net profit ratio का answer and operating profit का answer will be one and the same, which has happened in multiple occasions when we have solved our practical problems. Non profit तो है ही नहीं, तो operating profit and net profit is one and the same. So keeping that in mind is what I am trying to explain to you कि net profit ratio is equal to what? Operating net profit. क्योंकि अगर non operating items निकाले then they both become one and the same. Next, the common size statement requires what? Common base, journal entries तो बिल्कुल नहीं है चैप्टर में, cash flow not connected, current ratio not connected. So मतलब B, C and D तो वैसे भी connected नहीं है, but yes we require a number which is 100. उसको कहते हैं common base. Okay, whether वो balance sheet होगा, whether वो income statement होगा. So the common base, that is what is your answer. I hope that you don't, if you do read this, don't by heart it, and hopefully because the by heart part, okay, बस रट लेना हो तो जाता है but वो temporary होता है, अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए होता है. 10 साल बाद भी उठा लो आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी. बिल पेएबल इज लॉन्ग टर्म लोन, नो. करंट लाइबिलिटी, यस आई थिंक सो. लिक्विड एसेट नहीं, एसेट तो बिल्कुल ही नहीं है. नेट लॉस बिल्कुल नहीं, मतलब ए सी डी कोई मतलब ही करता नहीं है, तो इट हैज़ टू बी करंट लाइबिलिटी बिकॉज इट इज अ करंट लाइबिलिटी. नेक्स्ट, जनरली करंट रेशियो शुड बी 2:1. ये इंडस्ट्री में, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, what you call इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज़ करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. और उसका मतलब है 2:1 का मतलब क्या है? अगर आपको 1 रुपया भरना है तो जेब में 2 रुपया होना ज़रूरी है. अगर नहीं है तो तुम भर नहीं पाओगे. सो सिंपल एज दैट. उससे ज़्यादा की नहीं, उससे कम की ज़रूरत नहीं है. तो वेरी सिंपल. बाकी जो बी, सी एंड डी है वो बेतुके है, उसका कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो व्हाट. जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रेशियोज, कैश, जब वो पढ़ते तो उनको इंटरेस्ट क्या है, क्या जानने में इंटरेस्ट है? लिक्विडिटी, प्रॉफिट, सेल, शेयर कैपिटल. नाउ प्लीज नोट, हु इज अ क्रेडिटर? जिसको उसके पैसे चाहिए. कब चाहिए? 2-3 महीनों में. तो वो प्रॉफिट या सेल जान के क्या करेगा? उसको उसके पैसे चाहिए. उसके लिए उसको ये समझना ज़रूरी है, क्या ये सामने वाली कंपनी है ना जिसको मैंने माल दिया, क्या उनके पास पैसे है? उसको कहते हैं लिक्विडिटी, बिकॉज कैश इज कंसिडर्ड टू बी अ लिक्विड एसेट. दैट्स इंपॉर्टेंट. भाई तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं. सो दैट इज व्हाट एक क्रेडिटर, हर व्यक्ति, एक बैंक वाला, एक मैनेजर अलग अलग चश्मा लगाता है और अलग अलग चीज़ों पर नजरें गड़ाए रखता है. क्रेडिटर अपना चश्मा किस पे लगाता है? लिक्विडिटी पर. सामने वाले के पास पैसे है कि नहीं, क्योंकि जब मुझे पैसे देने की बारी आई वो नहीं बोलना चाहिए हाथ उठा के, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है. लिक्विडिटी, मनी है कि नहीं. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी. दिस इज क्वेश्चन बी, वन वर्ड फॉर्म. ओके, सो करेक्ट ऑल्टरनेटिव खत्म हो गया. द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट पीरियड्स क्या है? कंपेरेटिव. इट्स इनकम स्टेटमेंट बट कंपेरेटिव बिकॉज इट शोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आजू बाजू में. नेक्स्ट, समा सिंपल, तो इतना लंबा टाइम एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं चाहिए. वो जो रफ वर्क लिखा है उसके नीचे भी रफ वर्क की जरूरत नहीं है. The ratio that measures, now it has to be one of the ratios, the relationship between gross profit and net sales. Gross profit ratio, क्योंकि वो रेशियो में ही आता है gross profit upon net sales. Next, critical evaluation. Sometimes ना वर्ड ही इतने भारी भरकम होते कि स्टूडेंट्स आला एक सब मतलब ही समझा नहीं अभी क्या आंसर को अटेम्प्ट करने का. ओके, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to measure profitability. That is what is the topic of the chapter, analysis of financial statement. Okay, critical evaluation का मतलब क्या है?
कैलकुलेटिंग परसेंटेजेस, कैलकुलेटिंग इंक्रीज डिक्रीज रेशियोज, उसको कहते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन. नेक्स्ट, a particular mathematical number showing relationship, रिश्ता between two accounting figures, उसको ratios कहते हैं, ratio analysis. okay, so accounting ratio analysis you can say, कोई बुरी बात नहीं है. an asset which can be converted into cash, उसको आप liquid asset कह सकते हो. okay, quick asset कह सकते हो. तो as far as this is concerned, liquid asset. Quick asset also is fine, nothing is wrong in that, it's the same. The ratio measuring the relationship, name of ratio, net profit and ownership capital employed, return on capital employed, because the word return means कितना कमाया, return वापस आया on the money that I have put in the company, which is called as capital employed. Next, the statement showing financial position of different periods of previous year and current year. This is comparative, because comparative में you always get financial position, balance sheet में of 1 year and the immediate year, not 5 साल बाद, the immediate year. Next, statement showing changes in cash and cash equivalent. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके, वो चीज़ें जो कैश है और कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वी कॉल इट कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चैप्टर, टू टीच यू कि बाबा व्हाट इज द रीजंस फॉर द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नेक्स्ट, activity related to acquisition of long-term assets and investments. I think textbook के answers में थोड़ा गड़बड़ी है, इसको हम कहते हैं investing activity. okay, I think textbook में financing कहा है, not very sure, but from my knowledge जो सही था वो मैंने बता दिया कि अगर आप fixed asset, motor car, land and building, machine, ये सब investing activity है. Next, the ratio that establishes relationship between quick asset and quick liability. Quick ratio मतलब that is the formula of it. No, don't say sir वो क्या है, liquid ratio, quick ratio, same. Okay, so correct alternative, one word, खत्म हुआ. Next one, state true or false with reason. तो ऐसे नहीं कि भाई कुछ लोग ट्रू और फॉल्स में तुक्का मारते, ट्रू फॉल्स, मतलब सर कुछ तो करेक्ट आ जाएगा. नहीं, करेक्ट तो आ जाएगा बट रीजन कौन देगा? हाँ, तो यहाँ पे तो आपको रीजन देना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, नहीं गलत है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट भी आता है, रेशो भी आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है. तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये सही है. क्यों? क्योंकि बाकी के चीज़ें भी इंक्लूड होती है. ओके, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन रिटन अबाउट. आप डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस. मतलब वरी का मतलब है सर मेरे को जल्दी लिखना है. नो, अ PDF ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म एंड ऑन द वेबसाइट. तो चिंता मत करो, आप अभी ध्यान दो. ओके, नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल but not a remedy. Yes, financial statements is not a दवा जो तुम्हारे बीमारी को दूर कर देगा. No, but it is a tool which will tell you बीमार है, कंपनी बीमार है, ये डिपार्टमेंट बीमार है, ये फंक्शन बीमार है. So I repeat myself, financial statements are only a tool. It will not rectify, it will only point out here mistake, here mistake, here mistake. उसके बाद दवा वो अलग सिस्टम है, वो अलग फंक्शन है. नेक्स्ट, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो. नो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है जो तुम हर दिन करते हो, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल. फिक्स्ड एसेट आप 10 साल में एक बार खरीदोगे, उसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हो.
नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो फॉल्स है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स, ओके, जो शेयर कैपिटल देते हैं, इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, करेक्ट, बिकॉज डिविडेंड पेड का मतलब पैसा गया, पैसा आया नहीं, तो इट इज ट्रू, डिविडेंड पेड इज अ पेमेंट, सोर्स का मतलब पैसा आना, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, तो मतलब वो नेगेटिवली बोला है आपने बट सच बोला है। Okay, so obviously there is a lot of matter that you have to write. My request is at least there have to be 2 points that justify कि आपने ये true बोला है तो क्यों और false बोला है तो क्यों। Next, gross profit ratio depends upon net sales, which is correct। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला है gross profit upon net sales into 100, तो मतलब the basement इज नेट सेल्स, तो उसमें गलत तो कुछ नहीं है। हाँ, सो अगेन बाकी यू डू हैव टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट द basis of calculation of gross profit is definitely net sales. Okay, moving on. Payment of cash against purchase of stock is a use of fund. Very right. आप जब स्टॉक खरीदते हो तो कैश देते हो ना, तो फंड जा रहा है, कैश इज फंड, फंड ओके जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है, करेक्ट है। ओके, सो पेमेंट ऑफ कैश, पेइंग एंड टेकिंग स्टॉक इज अ यूज ऑफ फंड। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन। ट्रू, सही है। दैट इज द रीजन रेशियोज आर कैलकुलेटेड, ताकि अगर आपको जानना है ये वाला बैंक की ये वाला बैंक अच्छा है, ये वाली इंश्योरेंस कंपनी की ये वाली इंश्योरेंस कंपनी, अभी मुंह पे तुम जाके उनके वेबसाइट पे देखेगा, ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कुकिंग द बुक्स। व्हाट इज कुकिंग द बुक्स? नोबडी कुक्स द बुक्स, बट टू राइट फैंसी नंबर्स इन बुक्स पॉसिबल है, पीपल चीट। ओके, तो यू डोंट ट्रस्ट देयर नंबर्स, यू कैलकुलेट योर ओन। तो रेशियोज कैलकुलेट करो ना, सच्चाई पता चल जाएगी, पर्दे के पीछे जो रहस्य है वो दिख जाएगा। वो थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में मैंने कहा, बट दैट इज करेक्ट। द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। सच है, अगर आपके पास एक्सेस पैसा है बट यू डोंट वांट टू पुट इट फॉर 5-6 years एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू आर लाइक मेरे को 2 दिन में ये पैसा लगेगा, मेरे को 1 हफ्ते में ये पैसा लगेगा, तो व्हाट डू आई डू, यू पुट इट इन अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड द बैंक वाला विल टेल यू सर आप जब चाहो आ जाओ, कल परसों तरसों ये पैसा आप लेके जा सकते हो। तो इट इज एज गुड एज मनी, कैश। ओके, बैंक खुला रहेगा, तुमको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिविटी रेशियोज एंड टर्नओवर रेशियोज आर द सेम। ट्रू, क्यों? नॉट सर वहाँ पे ट्रू लेकर तो तुम तो ट्रू बोले गए, ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चंस गलत है, आंसर्स गलत है, तो मैंने वो भी बोला है गलत है और मैंने उसको चेंज किया है। सी व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी? नाउ यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। आपको ये वाले जो सब्जेक्ट इस चैप्टर है उसमें उन्होंने डिटेल्स नहीं दिए हैं, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ एन एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी मतलब आप जो माल बेचते हो, आप जो माल खरीदते हो, उसका जो पैसा आता है जाता है, वो सब एक्टिविटी है। ओके, तो एक्टिविटी रेशियो द वर्क दैट यू डू एंड टर्नओवर रेशियो विच इज द वर्क दैट यू डू आर द सेम। ट्रू, एकदम सही है। बाकी द रिमेनिंग भाषण इज ऑब्वियसली देयर इन द रीजनिंग दैट हैज बीन गिवन। क्यों, उसका रीजन ऑब्वियसली ऊपर दिया है। 10th one, current ratio measures the liquidity of the business। मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, ये सच है, बिकॉज करंट रेशियो में यू गेट करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, एंड व्हाट डज करंट एसेट मीन? कन्वर्टिंग इनटू कैश। व्हाट डज करंट लाइबिलिटी मीन? कन्वर्टिंग इनटू कैश एंड पेमेंट। करंट एसेट मतलब पैसा आएगा और करंट लाइबिलिटी मतलब पैसा जाएगा, एंड इट इज नॉट लंबे समय में, 10 साल 15 साल नहीं रही, 1 साल के अंदर। करंट का मतलब 1 साल। नेक्स्ट,
11th one we still are doing true or false. Ratio analysis measures, नापता है profitability, efficiency and financial soundness of the business. मैं इस पे भी आर्ग्यू नहीं करूँगा, because when you calculate ratios, yes you are doing okay, how much does this company earn, gross profit, net profit, efficiency, how good is it performing, फाइनेंशियल साउंडनेस, पैसा है कि पैसा नहीं है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में. तो रेशियोज आर देयर बिकॉज you have got only I think what maybe 8 ratios, but actually there are more than 30 ratios. अभी तुम सबका पढ़ाई करने जाएगा तो डेफिनेटली ये सब फीचर्स रेशियो एनालिसिस में आ जाएगा. नेक्स्ट, यूजुअली करंट रेशियो शुड बी 3:1. नहीं, ये गलत है, वो 2:1 होना चाहिए. किसने बोला? देखो भाई, जिन्होंने भी ये रेशियोज की स्थापना, मतलब जिन्होंने ये रेशियोज का फॉर्मूला बनाया है, वो जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने कहा है करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, क्विक रेशियो 1:1 होना, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड. इतना तो होना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम नहीं. डी, आंसर इन one sentence. This most probably is the last part. Mention 2 objectives of comparative statement. You see, in comparative statement what do? You compare 2 years. Objective मतलब क्यों कर रहे हो. Actually reasons तो बहुत है, but यहाँ पे 2 कहा तो हम लोग 2 तो लिख ही देते हैं. Compare financial data at 2 points of time, first year, second year. Compare. Obviously इसका काम है. Helps in deriving the meaning and conclusion regarding the changes. सेल्स ऊपर क्यों गया, नेट प्रॉफिट नीचे क्यों आया. तभी जब दिखेगा आपके सामने तो ही तो आप क्वेश्चन करोगे, तो ही आप उसको एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे. एंड देयर आर अ लॉट मोर इन द टेक्स्ट बुक. वी हैव जस्ट गिवन 2, क्योंकि 1 सेंटेंस को आपको 1 पेज नहीं करना. स्टेट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इनफ्लो. कोई भी बहाना हो, अगर पैसा आता है तो वो एक एग्जाम्पल है. ओके, नो प्रॉब्लम. इश्यू ऑफ शेयर्स बेचोगे तो पैसा आएगा. बैंक लोन टेकन, बैंक का फॉर्म, लोन का फॉर्म भरोगे, अप्रूव हो जाएगा तो पैसा आ जाएगा. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गाड़ी बेचो, घर नहीं, ओके, मशीन बेचो, कार बेचो तो पैसा आएगा. एंड डिविडेंड रिसीव्ड, हाँ, डिविडेंड रिसीव सीधा अकाउंट में पैसा आ जाएगा, पर पैसा आएगा. सो इट इज कैश इनफ्लो. नेक्स्ट, स्टेट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कैश आउटफ्लो. कुछ भी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उन लोग से बोल रहे आउटफ्लो के 3 हमको रीजन आप दे दो. हमको तो बहुत पता है कि पैसे जाते कैसे हैं. देखो यार, पहला परचेस ऑफ एसेट, कार खरीदो, लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, मशीन खरीदो. डिविडेंड पेड, आप शेयर होल्डर्स को पेमेंट करो. रिडेम्पशन, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ये टेक्स्ट बुक में इतना नहीं है, बट स्टिल आई टेल यू कि प्रेफरेंस शेयर्स को आपको रिटर्न बैक करना है. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रिडेम्पशन, रिटर्न बैक. सो व्हेन यू रिटर्न द मनी बैक, पैसा तो जाएगा ना. ओके, उसका टेक्निकल वर्डिंग है रिडेम्पशन और रीपेमेंट. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, एनी लोन यू टेक, लोन तो देना ही है, बट इंटरेस्ट भी तो हर महीने देना है, तो वो भी कैश फ्लो हो जाता है, आउटफ्लो. गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. वेरी फेमस, मतलब ये कितनी बार इन दी ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ 3 या 4 बार आ चुका है. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, नाउ इसका मतलब आगे बोला गया है, इफ यू रिक्वायर टू नो, कि नेट सेल्स कैसे आता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. ओके, cost of goods sold, because gross profit is sales minus cost of goods sold. But if you don't know cost of goods sold, so how do you find gross profit? Yes, you should know COGS, cost of goods sold, which is opening stock plus purchase minus closing stock. Technically इतना है. Next, give the formula of gross profit. Actually एक मिनट पहले ही हमने ये किया था. ओके, अभी दिया है तो वापस से लिख दिया. Net sales minus cost of goods sold. Okay, so that's the very simple formula of gross profit. So like I said, no, कितनी बार ये repeat किया है. State any 3 example of current assets. Okay, not quick and non-quick. बोल रहे current asset का जो example देना है, cash,
बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, ये सब करंट। अभी 3 ही पूछा है तो 3 ही लिख लो, यहाँ पे काफ़ी लिखे, बट द सेम थिंग्स विच आई मेंशन टू यू। नेक्स्ट, give the formula of current ratio. Current, okay, current asset upon current liability, not multiply by 100 because this is a pure ratio, so it's not multiply by 100. Give the formula of quick assets, not quick ratio, quick assets. तो देखो current asset में से आप stock को निकालो, आप prepaid को निकालो, non quick तो quick बच जाएगा, so that is what is going to come up. करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को आप निकाल दो तो आपको ये आ जाएगा। ओके, तो वो ब्रैकेट में है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ब्रैकेट में, बिकॉज प्रीवियस एक ऑब्जेक्टिव में प्रीपेड प्लस था बट वो ब्रैकेट में नहीं था, सो दैट मेक्स अ डिफरेंट मतलब। ओके, तो ब्रैकेट में जो है वो नॉन क्विक है, माइनस कर दो, क्विक आ जाए। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एंडिंग, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 2 या 3 ऑब्जेक्टिव 1 लाइन पहले ही किया था हमने, उसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, प्लस परचेस आता है एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द मिनिमम। टू मच ऑफ डिटेल में आप जाओ, परचेस रिटर्न माइनस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज गिवन अबाउट। व्हाट डज दैट मीन? फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री का रेंट होगा, कोल एंड फ्यूल रहेगा, फैक्ट्री का जो भी खर्चा है, लाइटिंग एंड हीटिंग एंड स्टफ, वो आ जाएगा। इतना डिटेल में आता नहीं है बट दिस इज हाउ इट कम्स। एंड लास्टली, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक। यू हैव 2 स्टॉक्स, ओपनिंग क्लोजिंग। एवरेज का मतलब बीच में, तो ये बीच का कैसा आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज व्हाट गिव्स यू एवरेज स्टॉक। गाइस, गर्ल्स एंड एवरीबडी एल्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट दिस एंटायर थिंग विच वाज डन behind me, the solution of the objectives of analysis is completely going to be solved in a solved manner with the rectifications, okay, on the Telegram channel as well as on the website. You can go to the website, download it, you can go to the Telegram channel, well, get connected to the Telegram channel, as simple as that, because this is just one PDF. There are going to be so many PDFs that are going to be shared. You can share it with your friends also, not just your friends. हाँ, वो मेरा दोस्त है उससे के साथ शेयर करूँगा, वो मेरा दुश्मन है उसके साथ शेयर नहीं करूँगा, नहीं, तो हम तो हमारे कैप्शन में बोलते हैं, ओके, कि दुश्मनों के साथ भी शेयर करो, कर भला सो हो भला, ओके। हाँ, शेयर इट विथ एज मेनी एज पॉसिबल सो दैट इवन दोज पीपल हु मे डू दिस चैप्टर, बट लाइक आई सेड, ये चैप्टर को टेक्स्ट बुक में इतना ध्यान नहीं दिया गया है, लाइक बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल चैप्टर, इट्स लिटिल बिट ऑफ अ मॉडर्न चैप्टर, तो मैनी प्रोफेसर्स डोंट पे मच अटेंशन ऑन दैट, क्योंकि एक तरीके से ऑप्शन में आता है। बट नो हार्म, अगर आप मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ी अच्छी मेहनत करो, ओके। सो दिस विल बी डेफिनेटली बी अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट। अगर आपको ये टीचिंग, ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, लाइक कर लीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर लीजिए। डिसलाइक का रीज़न हमको डेफिनेटली बता दीजिए, ताकि वो हमारे लिए सजेशन होगा, वो एक रिक्वेस्ट हो सकता है, ओके, वो हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट का मुद्दा हो सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जानकारी ये लेक्चर की, ये चैनल की और सारे लेक्चर्स की अपने जितने जाने पहचाने लोग हैं उन तक पहुंचा दीजिए। टिल द टाइम वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन बड़े मज़े में जाए। स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स जितना हो सके। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय।